Hello everyone, welcome to QuestLink IS. In this video, I am going to discuss some of the basic questions of geography, which is basic in nature but has been asked in many of the examinations like UPSC, UPPCS, Bihar PCS, MP PCS, and many other examinations. This video will contain question related to India's latitude, longitude, India's extent, India's bordering states, India's neighboring country, their borders, and some other important question. So So let's start with question number one. The southernmost point of India is. This question has been asked in subordinate UP subordinate 2002. So this is very basic question. Option A, Kanyakumari. As we all know that Kanyakumari is the southernmost point which is connected to India mainland, that is Tamil Nadu. This is, let me choose a color. This means this is here Kanyakumari. As I've already pasted a map here for clear vision. So it is located in Kanyakumari mainland. So this is not a southernmost as it is mentioned as southernmost point, because Andaman Nicobar is also part of India, and we all know that it is something around 8 degree, and Andaman Nicobar is around 6 degree 45 minute latitude, and this is 8 degree 6 minute latitude. This is 6 degree 45 minute latitude. So this sorry, degree and minute. Okay, so means answer should be here, but this point is known as Indira point. See, this point is known as Indira point. Please remember, this is very, very important. The southernmost point of India is Indira point, located in the southernmost tip of the Andaman Nicobar Island. So, as southern point we have discussed, so let's see the northernmost point. Northernmost point is the Indira Col. This is Indira Col. So, just remember the name northernmost Indira Col. North for call and south for point. Indira point is this could be very confusing if you don't remember it clearly. So just make some mnemonic, like in north means call, in Indira call means northernmost point, and Indira point means southernmost point. So just see the westernmost point. Westernmost point is Guhar Moti, is located in the Gujarat, and the easternmost point is Kibuthu. Kibuthu is a village in Arunachal Pradesh. So just remember these four facts: northernmost Indira Col, southernmost Indira Point, westernmost Guhar Moti in Gujarat, and easternmost Kivuti in Arunachal Pradesh. So the answer should be here. You all will know that the answer here is Indira Point. But let's discuss some other points. That is Rameswaram. Rameswaram is a very famous island. As we all know that Rameswaram is here, somewhere here. Means between in Gulf of Mannar. ये Gulf of Mannar है. Gulf of Mannar. ये Gulf of Mannar, and between India's state of Tamil Nadu and Sri Lanka. Here this is very Pamban bridge from Mandapam. Here it is a point called it is here. Okay, it is here. Here this is a place called Mandapam. So from Mandapam, very famous Pamban bridge connect mainland India to रामेश्वरम ब्रिज. बट रामेश्वरम ब्रिज से एक ब्रिज जो कि श्रीलंका को कनेक्ट करता है और वो ऐतिहासिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है राम सेतु. तो रामेश्वरम को इंडिया मेनलैंड से कनेक्ट करता है पम्बन ब्रिज, और फिर वहां से रामेश्वरम सेतु रामेश्वरम आइलैंड को कनेक्ट करता है श्रीलंका बाई राम सेतु, जिसे एडम ब्रिज भी कहा जाता था. एडम सेतु या एडम ब्रिज कह सकते हैं. So these are some important points to notice. And Point Calimere. Point Calimere is not the easternmost westernmost. Point Calimere is a point somewhere here. It is also here in the Bay of Bengal region. And here there is located Point Calimere Wildlife Sanctuary. So for this reason, Point Calimere has been given here. So answer is here Indira Point. So let's move to question number second.
This is a explanation that has been given here. So please read it. Question number 2. Which one of the following pair of a state of India indicate the easternmost and the westernmost state? As I have already discussed earlier in the question number 1 that easternmost state in Gujarat, Arunachal Pradesh, and westernmost, तो ये तो वेस्टर्न मोस्ट गुजरात, तो ये तो होगा नहीं, राजस्थान दे दिया है वेस्टर्न मोस्ट में, और असम भी नहीं है। इसका अरुणाचल तो दिया है बट राजस्थान दिया है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर शुड बी ये भी नहीं होगा, आंसर शुड बी अरुणाचल एंड गुजरात। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज explanation given here. Question number 3. Which one among the following major Indian cities is most eastward located? And so here it has been asked eastward location. Honestly speaking, if this kind of question has been asked, so if you are not very comfortable, so please leave that kind of question, because the chances of getting wrong is very high. But still you can manage this kind of question if you remember some longitude of some cities longitude, like here it is given that Hyderabad. How can you solve this question? Because यहाँ पे ask किया गया eastward, तो ईस्टवर्ड पता होने के लिए तो आपको लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए, लेकिन हमें रफ आइडिया तो होता ही है कि दिल्ली वेस्ट में है, मुंबई बहुत वेस्ट में है, पटना ईस्ट में है, तो विशाखापट्टनम एक ईस्टवर्ड एक पोर्ट है, तो ये हमें आइडिया तो होता ही है। बट यहाँ पे आप जब लोकेशन देखेंगे तो हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ एंड बेंगलोर ये बहुत ही क्लोज्ड है और ये मेजर सिटीज ऑफ इंडिया। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट देना चाहूंगी कि दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु, ये तीन जो ये है ना, इनको याद रखिए, ये सब 77 डिग्री, 77 डिग्री एंड 441 मिनट, दिस इज 77 डिग्री एंड समथिंग 51 मिनट और समथिंग है। तो ये हमें बिल्कुल याद रखना है कि ऐसे हो रहा है। तो ये बिल्कुल एक ही लाइन पे, यदि मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं ना, यहाँ से मान लीजिए दिल्ली से मैं ड्रॉ करता हूँ एक स्ट्रेट लाइन, तो ये देखिए बिल्कुल भोपाल से थोड़ा सा ऐसे जाएगा एंड बेंगलोर ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे जाने वाला है। तो देखिए दिल्ली के ही समवेयर अराउंड चंडीगढ़ है ऊपर, सॉरी, और इंदौर इसके ईस्ट में आ जाएगा यदि इंदौर आस किया गया। तो आपको ये तीन सिटी याद रखना है। तो यहाँ पे हैदराबाद यदि आप देखते हो तो ये वेस्ट में आता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है ईस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, इसमें आप आइडिया ये भी लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार जो है ना वो रिलेटिवली ईस्ट में है, क्योंकि इंडिया का जो एक्सपेंशन आप ऐसे देखते हैं कि इंडिया का जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है वो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन से ज्यादा है। खासकर जब दिल्ली को जब मेजर रखते हैं, क्योंकि दिल्ली जो, जब आप दिल्ली को एक लाइन मानते हैं तो दिल्ली इंडिया के वेस्ट में है, तो उसके ईस्ट में ज्यादा लैंड मास होगा, मतलब ये इधर लैंड मास ज्यादा होगा और इधर लैंड मास कम है। तो इसका मतलब सीधे ये हुआ कि जो कोई ईस्ट का सिटी होगा वो शायद ईस्टवर्ड ज्यादा होगा रिलेटिवली जो वेस्ट का सिटी होगा। तो आप हैदराबाद भी आप मानते हैं कि थोड़ा सा, तो ये तो लखनऊ से जब आप कंपेयर करते हो तो आपको लगता है कि नहीं, लखनऊ तो फिर भी बिहार का पटना है, लखनऊ है, तो उससे तो ऊपर ही होगा, मतलब उससे ईस्टवर्ड ही होगा। तो इसका आंसर लखनऊ है। बेंगलोर, जबकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भोपाल और बेंगलोर ये दोनों लगभग एक ही लॉन्गिट्यूड पे हैं, तो ये दोनों तो होने वाला नहीं है। हैदराबाद भी समवेयर अराउंड इसी का अराउंड में होगा, क्योंकि हैदराबाद भी बेंगलोर के आसपास ही आप सुनते हो कि लॉन्गिट्यूड में आता है, हालांकि थोड़ा ईस्टवर्ड है। यहाँ पे देखिए हैदराबाद यहाँ पे है और बेंगलोर यहाँ पे है। बट जब आप लखनऊ से कंपेयर करेंगे, लखनऊ इज हेयर समवेयर, सी, मतलब साउथ इंडिया का कोई भी मेजर सिटी लखनऊ के लॉन्गिट्यूड में आ ही नहीं रहा है। चाहे आप बेंगलोर ले लीजिए, मैसूर ले लीजिए, केरल का कोई भी सिटी ले लीजिए, आंध्रा का कोई सिटी, आंध्रा का आ रहा है, सॉरी, महाराष्ट्र का कोई सिटी ले लीजिए, ये नहीं आ रहा है इस एरिया में। तो मतलब ये सिंपल सी बात है कि ये इधर की ओर जाएगा, तो इसका आंसर होगा लखनऊ। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर, ये दिस इज द आपका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असम शेयर बॉर्डर विथ भूटान एंड बांग्लादेश। तो अब देखते हैं कि असम क्या भूटान और बांग्लादेश से बॉर्डर से, यहाँ पे हमने डेलिबरेटली एक मैप लगाया है ताकि स्टूडेंट्स आप इस पे मैप आपको दिख जाए और प्रैक्टिस हो, कि ताकि आपको ये याद रहे। बिल्कुल याद रखना है इंडिया के मैप को, बिल्कुल भूलना नहीं है, खासकर जो
ये जो 8 स्टेट है ना, 8 सिस्टर स्टेट इसको बोलते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट, इनको बहुत याद रखना, बहुत क्वेश्चन पूछे गए, आगे भी इसमें मैंने स्लाइड्स में डाले हैं। तो देखिए, असम क्या शेयर करता है भूटान बांग्ला, तो बिल्कुल असम भूटान से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये देखिए, और बांग्लादेश से तो ये करता ही है, बहुत जगह करता है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। वेस्ट बंगाल शेयर बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल, क्या वेस्ट बंगाल शेयर कर रहा है? देखिए, वेस्ट बंगाल का मेन लैंड इधर है, ये आपको लगेगा कि नहीं शेयर करता, बट इसका एक चिकन नेक जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये इसके ऊपर ये बोडोलैंड का एरिया आता है, ये बहुत ही सेंसिटिव जोन है मिलिट्री तौर पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भूटान से भी शेयर कर रहा है, नेपाल से भी शेयर कर रहा है, और ये सिक्किम से तो शेयर कर ही रहा है, तो 2 देश से तो ये शेयर कर ही रहा है, और ये एरिया नीचे बांग्लादेश से भी शेयर कर रहा है, तो मतलब ये 3 देश से शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे तो आंसर है कि आपको भूटान और नेपाल, तो ये तो करेक्ट ही होगा। मिजोरम शेयर बॉर्डर विथ बांग्लादेश एंड बांग्लादेश एंड म्यांमार, सो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज आप मिजोरम को देखते हो तो बांग्लादेश का एक एक्सटेंशन, ये चिटगांव का एरिया है, चिटगांव, इसको चिटगांव बोलते हैं, तो चिटगांव का, बांग्लादेश का चिटगांव मिजोरम से बॉर्डर शेयर करता है, और म्यांमार से बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 होगा, 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। Which one of the following state does not form the border with बांग्लादेश? अभी हमने डिस्कस किया कि कौन बॉर्डर शेयर करता है, अभी आपको मैप याद होगा, डेलिबरेटली मैंने यहाँ पे मैप नहीं लगाया है, तो यदि कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आए और आपको याद ना आए, तो आप फ्री हैंड मैप बनाने की कोशिश कीजिएगा। फ्री हैंड मैप आपको 20 सेकंड के अंदर बनाना होता है, एग्जाम में, मेंस में बहुत ही काम आता है, ये आगे आपको बताऊंगा। और ये आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, ये आप ऐसे मान लो, तो ये नेपाल हो गया, ये सिक्किम का इलाका हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश, भूटान, ये भूटान हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं, ये हो गया मिजोरम, त्रिपुरा, और ये बांग्लादेश का इलाका। एक रफ मैप मैंने बनाया है जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन। तो मैं अभी ये क्या कर रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म बॉर्डर विथ बांग्लादेश, तो बांग्लादेश तो ये है, ये वाला एरिया बांग्लादेश है, ये वाला। अब बोल रहा है क्या मेघालय शेयर करता है? मेघालय बिल्कुल शेयर करता है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एरिया, ये तो त्रिपुरा मैंने बनाया, इसके ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये मेघालय का ही एरिया होता है, तो ये मेघालय तो बिल्कुल बांग्लादेश से शेयर कर रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। त्रिपुरा क्या कर रहा है? त्रिपुरा तो मैंने बताया है कि ये त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा है, और ये मिजोरम है, ये दोनों बॉर्डर शेयर करता है। त्रिपुरा बिल्कुल ही अंदर घुसा हुआ है बांग्लादेश के, 3 तरफ से वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, एक तरफ से कनेक्टेड है इंडिया से, तो ये भी शेयर कर रहा है। क्या मणिपुर, मिजोरम भी शेयर कर रहा, तो क्या मणिपुर शेयर कर रहा है? मणिपुर नहीं शेयर करता, एक्चुअली मणिपुर ना बीच का स्टेट है, ये मिजोरम, मणिपुर, और इसके यहाँ पे एक नागालैंड, ये मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड, ये है मणिपुर और ये है नागालैंड, और उसके ऊपर तो आप जानते हैं कि ये अरुणाचल है। तो कभी कंफ्यूजन हो ना, तो सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग, तो कभी कंफ्यूजन हो तो आप ये जरूर एक फ्री हैंड मैप बनाने की प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको बहुत ही हेल्प होता है, मेंस में खासकर बहुत ज्यादा हेल्प होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following Indian state does not share border with भूटान? फिर सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया भूटान से कौन बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो सिक्किम तो करता है, बिल्कुल ये बीच में ही घुसा हुआ है नेपाल और ये अरुणाचल का, ये बीच में है, तो सॉरी नेपाल और भूटान का ये बीच में है, तो ये तो करता ही है। मेघालय, मेघालय बॉर्डर शेयर नहीं करता, क्योंकि अभी मैंने देखा उस पे, जो ये बिल्कुल बांग्लादेश के ऊपर है, बांग्लादेश के ऊपर है, और इसके ऊपर बिल्कुल असम का बॉर्डर आ जाता है, तो ये नीचे एक, मतलब एक बाउंड्री इसका मिलता है बांग्लादेश से, और बाकी 3 बाउंड्री मेघालय का मिल जाता है असम से, तो इसका आंसर यही होगा। बाकी अरुणाचल प्रदेश भूटान से करता ही है। वेस्ट बंगाल अभी हमने देखा कि इसका बॉर्डरलैंड का एरिया भूटान से जाकर मिलता है, नेपाल से मिलता है, तो आंसर इसका ये सब नहीं होगा, आंसर मेघालय होगा। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉर्डर रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं और बहुत कंफ्यूजन करते हैं, तो बिल्कुल याद रखने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए बीपीएससी का बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन है, 2022 में ये बीपीएससी 768 में पूछा गया था। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव ए कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार? तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा आपको अभी मेंशन होना चाहिए। जैसे ही आप म्यांमार देखे और ये त्रिपुरा देखे, आपको समझ में आ गया कि ये नहीं होगा। त्रिपुरा सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, वो है बांग्लादेश, बाकी ये तीनों स्टेट कर रहे हैं म्यांमार से।
Option B, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, and Mizoram. Arunachal Pradesh is sharing border. Nagaland is also sharing border. Manipur is also. तो option B is the correct answer. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे आप देखिए असम दे दिया ऑप्शन सी में, तो ये तो गलत हो गया. यहीं पे मोर देन वन यहाँ पे नहीं हो सकता है क्योंकि हमको बी ऑप्शन मिल गया, नन ऑफ द एबव भी नहीं. तो बाई सिंपल मैपिंग से और आप इंडिया के मैप को याद करें, खासकर 8 जो स्टेट हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, 8 सिस्टर स्टेट जिसको भी कहते हैं, उसको याद रखने से ये क्वेश्चन हो जाते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट शेयर बाउंड्रीज विथ पाकिस्तान. तो पाकिस्तान से पूछ रहा है बाउंड्री कौन शेयर करता है, तो मैंने एक डेलिबरेटली मैप लगाया है आपको याद रखने के लिए कि इंडिया का 3 स्टेट जो है, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, और 2 यूनियन टेरिटरी लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर. पहले ये स्टेट हुआ करता था, इसलिए जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एज ए लिख दिया गया था. बट अभी तो हम जानते हैं कि ये स्टेट नहीं, यूनियन टेरिटरी. लेट इट बी. तो यहाँ पे आंसर आपका जे एंड के, हिमाचल प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश नॉट शेयर बॉर्डर विथ पाकिस्तान. पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान एंड गुजरात. पंजाब शेयर बॉर्डर, जम्मू कश्मीर शेयर बॉर्डर, राजस्थान शेयर बॉर्डर एंड गुजरात शेयर बॉर्डर. तो ऑप्शन इज बी, these all 3 state and 2 union territories share border. This is not correct answer because here Haryana is given, Punjab, Himachal Pradesh, Rajasthan. ये here हिमाचल प्रदेश is given, हिमाचल प्रदेश is not sharing. हिमाचल प्रदेश आपका इधर हो जाता है ये वाला, तो इट्स नॉट शेयरिंग बॉर्डर. तो अब आप आगे आइए क्वेश्चन नंबर 9. Which one of the following countries share the longest land frontier with India? अब देखिए ये बहुत ही डाइसी क्वेश्चन है. इफ एनीवन थिंक रेशनली ही विल प्रोबेबली आंसर इट आइदर चाइना और पाकिस्तान. बट इंटरेस्टिंगली द हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट बॉर्डर इंडिया शेयर विथ बांग्लादेश. तो प्लीज रिमेंबर इट, इट इज दैट बांग्लादेश, देन चाइना, then Pakistan, then Nepal. This is Corona, then Myanmar, and after that Myanmar, Afghanistan. So this is chronology. So just remember, if you remember these 4 countries, you will able to answer all the neighboring related neighbor countries and their border related question. So here the answer is the highest border is Bangladesh, and approximately 4,000 something kilometer is made with Bangladesh. See, 4,096 kilometer. Then comes China, 3,488 kilometer. Then is the number of Pakistan, 3,323 kilometer. Then Nepal. These are top 4, and then Myanmar, of course, and then Bhutan and Afghanistan. So just remember this. This is very important fact. Question number 10. The boundary between India and Pakistan was demarcated by. Yeah, this is very basic question, and we all know that the boundary between India and Pakistan is actually Red Cliff Line. Durand Line is between India and Afghanistan. India and Afghanistan. Many of you must be knowing that. India to Afghanistan. McMahon Line, India and China. Magnote Line is very important because it has been asked several times, especially in one time in UPSC, another time in UPPCS, and recently very 71st BPSC 2026. It has been asked in 71st BPSC. So Magnote Line is between Germany and France. So this is very important. Just remember it. Maybe it could be asked again. So Red Cliff Line is the answer. So just move next question. This is here. This is explanation. See, again the McMahon line demarcates the boundary between which of the following following option. See, this is the question of Uttarakhand PCS, and we all know that many major western border with Arunachal Pradesh, and in fact eastern border, all borders are not well defined or mostly are disputed. Means China is claiming whole of Arunachal Pradesh. It has also occupied India's illegally occupied India's Kaichi region. This is demarcated. This is Pakistan occupied Kashmir, and this is Siachen Glacier. So these
Siachen Glacier. These are very important location, especially when you write mains answers. These maps should be handy with you, and you can use these maps so frequently that it will be helpful to fetch more marks. So just see. तो यदि आपको ये बोला कि कौन सा है, ऑल्दो मैकमोहन लाइन हम ऐसे बस बोल देते हैं इंडिया चाइना के बीच, तो हमें लगता है कि सारा बॉर्डर ही मैकमोहन लाइन है, बट नहीं, स्पेसिफिकली मैकमोहन लाइन इंडिया और अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है ना, उसी को मैकमोहन लाइन बोला जाता है, बाकी नहीं बोला जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ना, वो अरुणाचल प्रदेश एंड चाइना। तो ये इसका बी आंसर है। लेट्स सी द आंसर। या बी ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following separates India and श्रीलंका? इंडिया और श्रीलंका को कौन सेपरेट करता है? वेरी डाइसी क्वेश्चन। यदि आप इसको थोड़ा सा मतलब ये होंगे तो गलत कर सकते हैं। स्वेज कैनल, पाल्क स्ट्रेट, गल्फ ऑफ कम्बात एंड गल्फ ऑफ कच्छ। मैंने यहाँ पे एक मैप लगाया है, उसका अभी पर्पस बताऊंगा। आपको पता है स्वेज, इसका आंसर तो आपको पता ही होगा कि पाल्क स्ट्रेट है, जो कि यहाँ पे है, ये यहाँ पे इंडिया श्रीलंका के बीच में। बट मेरा मैप लगाने का पर्पस ये नहीं था। मेरा मैप लगाने का पर्पस ये था कि आपको ये बताया जाए स्वेज कैनल और भी जो इंपॉर्टेंट इस ऑप्शंस में दिए गए हैं। ये स्वेज कैनल जो है ना, वो रेड सी को, ये है, ये रेड सी, ये स्वेज कैनल है। ये इजिप्ट का सिनाई पेनिसुला से यहाँ से बनाया गया मेडिटेरियन में जाने के लिए। बहुत ही एक रूट है जो मैन मेड है, और इजिप्ट के कंट्री के सिनाई पेनिसुला से होकर जाता है, और ये रेड सी को कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी से। यहाँ पे ये मेडिटेरियन हो गया और ये रेड सी हो गया। और उसके ऊपर देखिए हॉर्मुज, जो भी बहुत ही फेमस है, बाब अल मंदेब है। यहाँ पे बाब अल मंदेब है, और ये है हॉर्मुज स्ट्रेट। ये है हॉर्मुज स्ट्रेट। यहीं पे पर्सियन गल्फ में हॉर्मुज स्ट्रेट कहाँ ले जा रहा है? यहाँ आपको इंडियन ओशियन से, सॉरी, जो आप अरबियन ओशियन कहते हो, इससे अरबियन सी से आपको पर्सियन गल्फ में ले जाया जा रहा है। ठीक है कि नहीं? तो हॉर्मुज बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत ही फेमस रहा था। इस बार यूपीएससी 2026 में भी क्वेश्चन हॉर्मुज स्टेट से आया था कि कौन से कंट्री से ये पास हो रहा है, तो ओमान से ये पास होता है। ओमान एक तरफ है, दूसरी तरफ आपका ईरान है। तो ये आया था क्वेश्चन। बाकी गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ में देखिए, जो इंडिया का, एक मिनट मैं इसे इरेज करता हूँ। जो गल्फ ऑफ कच्छ है ना, मान लीजिए ये ऐसा है, वहां पे दिख नहीं रहा, मैं इसे थोड़ा फिर से बना देता हूँ। ये है गल्फ ऑफ कच्छ, ये है कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। और जो ये नीचे आपको दिख रहा है ना, ये है गल्फ ऑफ खंबात, ये गल्फ ऑफ खंबात। तो मे बी कभी ये पूछ दे कि आपको नॉर्थ से साउथ आना है, ये कब कौन सा इसका ऐसे जाना है साउथ टू नॉर्थ, ऐसा कभी, क्योंकि आजकल बहुत डाइसी क्वेश्चन आते हैं, तो ये ही दिखाने के लिए मैंने ये मैप लगाया था। ये आप याद रखिए, खंबात नीचे है और गल्फ ऑफ कच्छ ये बीच वाला है, जो गुजरात के दोनों के बीच का एरिया है, वो है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बॉर्डर विथ 3 कंट्रीज, नेमली नेपाल, भूटान एंड चाइना। नेपाल, भूटान, चाइना के साथ। अब देखिए एमपीपीसीएस में काफी बार पूछा गया, हालांकि ये बीपीएससी में पूछा गया और यूपीएससी में भी पूछा गया है, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आए, पहले ये आते थे। तो नेपाल, भूटान और चाइना से कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है? अरुणाचल प्रदेश। एक मिनट। विच स्टेट ऑफ द इंडिया हैज बॉर्डर विथ 3 कंट्रीज, नेमली नेपाल, भूटान एंड चाइना। सो ये एक तरीका से आप ये देखो, क्या अरुणाचल प्रदेश करता है? आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश नहीं करता है, सिक्किम करता है। सिक्किम बिल्कुल घुसा हुआ है, एक तरफ इसके पास नेपाल है, दूसरे तरफ भूटान है, और इधर ऊपर चाइना है। तो ये चाइना बड़ा सा, ये चाइना कर रहा है, ये सिक्किम होता है, बिल्कुल अंगूठा की तरह घुसा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश नहीं कर रहा। अरुणाचल प्रदेश नेपाल से बाउंड्री शेयर नहीं करता, बाकी 2 स्टेट से कर रहा। मेघालय तो करता, मेघालय तो बांग्लादेश से कर रहा, तो ये तो होगा नहीं। वेस्ट बंगाल भी हमारा चाइना से नहीं करता, नेपाल और भूटान से करता। तो आंसर इसका डी होगा। देखिए कितने मतलब घुस घुस के क्वेश्चन पूछना कहा जाता है, और कितने अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल इन पे गलती ना करें, ये बेसिक क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं।
इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड टुवर्ड द सी अप टू हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स। तो ये हमारा जो अनक्लॉज लॉ होता है उसके हिसाब से जो हमारा ये याद रखने वाली बात है 12 नॉटिकल मान होता है, ये टेरिटोरियल वाटर होता है, टेरिटोरियल वाटर। 24 जो होता है वो कंटिजेंट होता है, कंटिजियस इसको बोलते हैं, कंटिजियस वाटर या कंटिजियस जोन बोलिए। और 200 नॉटिकल माइल, ये 200 नॉटिकल माइल जो होता है वो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछा है कि नॉटिकल माइल में टेरिटोरियल वाटर के ही बारे में पूछ रहा है, तो टेरिटोरियल 12 नॉटिकल माइल, और इसको किलोमीटर में बदलिएगा तो 1.9 किलोमीटर हो जाता है, तो ये आपको याद हो जाएगा। किसी भी कंट्री को ना जो जो ये राइट मिलता है पॉली, मान लीजिए कोई मिनरल मिलेगा तो वो 200 नॉटिकल माइल तक उनको मिनरल एक्सप्लोर करने के लिए या वहां से माइंस करने के लिए, ये अनक्लॉस से वो अपना मतलब अनक्लॉस एक संस्था है यूएन का, तो वो उनको अलाउ करती है कि आप यहाँ माइन कर सकते हैं समुद्र के तल छट्टी से जाकर, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 200 नॉटिकल माइल। कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि उनके इस एरिया में, इकोनॉमिक एरिया में कोई अदर कंट्री फिशिंग करे या माइनिंग करे या कुछ ऐसा गतिविधि करे। जैसे इंडिया बहुत ही अनसिक्योर हो जाता है जब चाइना से कोई वेसल या कोई इस तरीके का उसके टेरिटोरियल में नहीं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी आ जाए तो काफी इशू होता है। वैसे ही इंडिया का कोई वेसल चाइना के पास जाए तो चाइना भी ओवर रिएक्ट करता है। आपने देखा है कि चाइना ने 9 डैश लाइन बनाया वहां पे ऐसे ऐसे करके, और ऑलमोस्ट ऑल साउथ चाइना सी को उसने अपना बोल दिया, जबकि उसके टेरिटोरियल वाटर में वो आता भी नहीं, उसका एक एक्सक्लूसिव जोन में भी नहीं आता, वो उससे बाहर है फिर भी, बट ठीक है, जियोपॉलिटिक्स जैसे चले। क्वेश्चन नंबर 15, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 69 बिल्कुल रिसेंट में आकर रखा, 2023 में ही आया था। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड अलोंग द तिब्बत बाउंड्री। हालांकि यहाँ पे तिब्बत लिखा था, आप इसे चाइना ही समझिए बिकॉज इलीगली ऑक्युपाइड है चाइना, तिब्बत को इलीगली ऑक्युपाइड कर रखा है। तो यहाँ पे मैंने मैप लगाया है, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, यही 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो तिब्बत यानी चाइना से कनेक्ट बाउंड्री शेयर करता है। तो उत्तरकाशी तो शेयर कर रहा है, चमोली भी शेयर कर रहा है, अल्मोड़ा नहीं शेयर कर रहा है। यहाँ पे नॉट ही पूछा था तो अल्मोड़ा आंसर होगा, ये रिमेंबर याद रखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कहीं फिर से पूछा जा सकता है और यूनिक क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड में 2 डिवीजन है, गढ़वाल डिवीजन और ये कुमायूं डिवीजन। आप कभी गए होंगे हरिद्वार, तो आप पता होगा कि हरिद्वार यहाँ पे देखिए एक डिस्ट्रिक्ट है, और ऋषिकेश और ये जो आप देखते हैं ये यहीं पे है। तो और उसके ऊपर फिर बहुत सारे रुद्रप्रयाग, पौरी है, टेहरी, देहरादून, ये सब बिल्कुल घूमने वाले इलाके हैं, बहुत अच्छे अच्छे इलाके हैं। तो नैनीताल भी इधर भी, तो अच्छा जगह है। तो अल्मोड़ा इसका जो होगा ना वो 3, ये 3 वो तिब्बत से जो कनेक्ट करता है उसमें नहीं है, तो ये याद रखिएगा। उत्तरकाशी, चमोली एंड पिथौरागढ़ ये कनेक्टेड है, बाकी नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, इन नवंबर 1998 द कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इंक्लूडेड 3 कंटेशियस इशू। ये 1999 का क्वेश्चन था। ओके, इन द स्टैंडर्ड मैप यूज्ड इन द पी, ओके ओके, अच्छा यहाँ पे एक पी वाई क्यू का एक मैप था जो मैंने लगभग शायद इसमें है नहीं, सो लीव इट दिस क्वेश्चन, लीव दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, which one of the following latitudinal extent is relevant for the extent of India's area। देखिए आप बिल्कुल याद कर लीजिए कि इंडिया का एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन है और उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। मैंने डेलिबरेटली एक अच्छा सा मैप लगाया है, आप देख लीजिए कि जो 8.4 डिग्री नॉर्थ है वो इंडिया का मेनलैंड का, जो कन्याकुमारी हम लोग बोल रहे थे, वहां से लेके एकदम यहाँ तक है 37.6 डिग्री नॉर्थ, ये नॉर्थ साउथ है। ईस्ट वेस्ट है 68.7 से लेकर 97.25, ये ईस्ट वेस्ट हो गया। लेकिन जब आपको सिर्फ ये बोल दे कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है, तो आप ये देखिए कि जो हमारा अंडमान और निकोबार का जो है, जो इंदिरा पॉइंट जो अभी हमने बोला था, इंदिरा पॉइंट, उसका जो लैटिट्यूड है वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है। तो अगर जो ऑप्शन में ये 6 डिग्री 45 मिनट ना रहे तब तो आप 8-4 और 37-6 के साथ जा सकते हैं, बट यहाँ पे आप देखिए कि 6-4 दिया हुआ है, तो ये बहुत ही एक डाइसी क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका रियल आंसर 6.6 डिग्री 45 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ होगा। और पूरा याद रखिए, ये आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड मेरिडियन जिससे इंडिया फॉलो करता है ये नैनी से गुजरता है, इलाहाबाद के आसपास का एक इलाका है, यहाँ से ऐसे गुजर रहा है, और 82.5 डिग्री ईस्ट यानी
2 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से हमारा स्टैंडर्ड जो टाइम जोन है जिसे हम अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं ये है। तो अब आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ओके, कंसीडर द following statement: the Indian mainland was part of Gondwana land. Second, the Himalayas were formed by the folding of sedimentary rock of Thetis Sea after the Indian plate collided with the Eurasian plate। देखिए ये सही बात है। इंडिया जो था वो अभी मैं आपको समझाऊंगा मैप के थ्रू, ये जो हमने यहाँ पे पेस्ट किया है। और हिमालय का जो ये है द हिमालयज वेर फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग ऑफ सेडिमेंट्री रॉक ऑफ थेसिस सी, ये भी बिल्कुल ट्रू है। आपको पता है हिमालय एक टर्शियरी माउंटेन है और बिल्कुल यंगेस्ट माउंटेन है, और जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया था तभी हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, और हिमालय यंग माउंटेन है, अभी भी ये बढ़ रहा है, मतलब अभी भी कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन चल रहा है दोनों प्लेट के बीच में, तो ये भी सही है। थर्ड, द पेनिनसुलर प्लेटी इज यंग वीक एंड फ्लेक्सिबल। देखिए ये यहीं से गलत हो जाता है। पेनिनसुलर प्लेटू एक बहुत ही पुराना रॉक है, एकदम बिल्कुल परमियम रॉक, जो जब अर्थ बना था तब का रॉक है, बिल्कुल अर्थ का रॉक, जो कि बहुत पुराना, सबसे पहले का। तो ये यंग नहीं हो सकता, ये तो ऐसे ही गड़बड़ है। वीक भी नहीं है, बहुत ही स्ट्रांग है और एकदम बैथोलिथ ही हमारा अर्थ, जो इंडियन प्लेट का बैथोलिथ है, जो पेनिनसुलर प्लेटो है वो बैथोलिथ रॉक से बना हुआ है। और फ्लेक्सिबल भी नहीं होगा क्योंकि ये रिजिड है जियोलॉजिकल, तो ये गलत है। तो इसका ऑप्शन तो 1 2 होगा, लेकिन मुझे ये लगाने का एक पर्पस ये है कि मैं आपको बताऊं कि ये कैसे हुआ था। तो मैं थोड़ा सा जियोलॉजिकल आपको क्रोनोलॉजी बताता हूं कि सबसे पहले ना 250 मिलियन ईयर अगो, परमियम काल उसको बोलते हैं, उस एज को परमियम एज बोला जाता है। उस समय पैंजिया हुआ करता था, मतलब मोस्ट ऑफ द जो लैंडमास था ना वो एक एक मतलब एक यूनाइटेड लैंड मास बनाया करता था, उसको पैंजिया बोलते थे। और ये जो वाटर था उसको पैंथालासा बोलते थे, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, पैंथालासा बोलते थे। फिर धीरे धीरे क्योंकि अर्थ के अंदर मतलब जो अर्थ का हीट है, अर्थ का कन्वेक्शनल करंट है, उससे ये क्या हुआ, ये मूव करा, और जिसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, जो बेगेनर और फिर बाद में बहुत सारे हेनरी हेस और सी फ्लोरस बेडिंग और बहुत सारे साइंटिस्ट और जियोग्राफर जो है वो अपने अपने तरीके से बताए। तो इसके बाद जो ट्राइसिक पीरियड हुआ 200 मिलियन ईयर अगो, इसमें क्या हुआ ना कि ऊपर 2 डिवीजन हुआ, मेजर डिवीजन। एक नीचे जो डिवीजन हुआ वो उसको बोला गया गोंडवाना, और जो ऊपर डिवीजन हुआ उसको बोला गया लॉरेसिया, और जो बीच में एक सी बना उसको बोल दिया गया थेसिस सी। ये तो हो गया। अब जो थर्ड डिवीजन हुआ जो जुरासिक काल में हुआ, 140 डायनासोर, जब डायनासोर आए थे पृथ्वी पे, जुरासिक है जो यहाँ पे डायनासोर का राज हुआ करता था, 145 मिलियन ईयर अगो। इसमें क्या हुआ कि ये गोंडवाना लैंड और ये ऊपर लॉरेशिया लैंड में भी डिवीजन, फर्दर डिवीजन हुआ। यहां से नॉर्थ अमेरिका सेपरेट होने लगा बाकी यूरोप से, और यहाँ पे बाकी एशिया और आजकल का जो, हाँ हमारा जो पूरा एशिया, अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका, और हाँ अफ्रीका भी, और मोस्ट ऑफ द जो हमारा अरब का अरबियन मतलब अरबियन जो पेनिनसुला वो, ये टूटा। इससे टूटा कौन, हमारा साउथ अमेरिका, और ये फिर डिवीजन होके ये मूव किया। फिर क्रेटिशियस पीरियड में जब 65 मिलियन ईयर अगो हुआ, तो ये सब एक दूसरे से बहुत अलग हो गए, बहुत अलग। ये देखिए ये इंडिया का प्लेट, ये जो दिख रहा है ना, ये आपको इंडिया दिख रहा है, यही यही जाके ऐसे यहाँ पे कोलाइड करेगा, ठीक है। तो अब जब इधर नीचे आते, ये देखिए प्रेजेंट डे में, क्योंकि हमेशा अर्थ अभी भी मूव कर रहा है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि हिमालय अभी भी राइज कर रहा है, मतलब हाँ, हाँ इसी क्वेश्चन में। तो अब देखिए कि ये इंडिया यहाँ से कोलाइड किया, और ये अभी ऐसा कुछ है। यहाँ पे एक ग्रेट ये बन गया है, ग्रेट रिफ्ट वैली बन गया है, जिसे अफ्रीका में एक और कंटिनेंट फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकता है। मिलियंस ऑफ ईयर बाद में हमको एक ये भी पार्ट टूटता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे ग्रेट रिफ्ट बन गया है, अफ्रीकन ग्रेट रिफ्ट। अभी वो हर साल कुछ ना कुछ फीट चौड़ा हो जाता है। तो अभी ये पीरियड, तो ये इसका समझाने का मतलब था। आगे का क्वेश्चन जाते हैं। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू, देखिए मतलब ऐसे तो 4 डिवीजन में ही किया जाता है, बट एनसीईआरटी के थ्रू जाएं क्योंकि यहाँ पे उसी क्वेश्चन को बना दिया गया है। तो इसका आंसर ये होगा, क्योंकि इसमें सब मेंशन कर दिया गया है। नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट एंड कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड।
बाकी इन अदर ऑप्शन यू कैन सी दैट some portions of Indian Physiography Division has been left. जैसे यहाँ पे आप देखिए तो डिजर्ट छोड़ दिया गया, और आइलैंड भी छोड़ दिया गया, तो ऐसे ही इसमें भी छोड़ दिया गया, कुछ कुछ इसमें भी छोड़ दिया गया, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एनसीईआरटी में बिल्कुल 6 डिवीजन किया गया है। हाँ, यहाँ पे देखिए 6 डिवीजन, एनसीईआरटी में 6 डिवीजन किया गया, 4 नहीं। आगे 20, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Consider the following statement. Bhabbar is a narrower belt along the Shivalik foothills where streams deposit boulder and may disappear. Tarai lies south of Bhabbar is marked by marshy and swampy condition due to re-emergence of streams. True है। Khadar is older alluvium while Bhangar is newer alluvium. ये wrong है। मैं आपको अब ये देखते हैं, भाबर इज नैरोअर बेल्ट द शिवालिक, ये भी करेक्ट है। मैं आपको बताता हूँ भब्बर, बांगर, खादर का क्या कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए ये माउंटेन है, यहाँ से रिवर फ्लो हो रहा है जैसे ऐसे, अब ये कुछ ऐसा ऐसा एक लैंड आएगा, फिर ये, तो ये जो जस्ट फुटहिल्स ऑफ माउंटेन्स हुआ ना, इसको बोला जाता है भब्बर। यहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर्स पाए जाते हैं, खेती बिल्कुल मुश्किल होती है, और ये स्ट्रीम्स इस बोल्डर्स के बीच में चले जाते हैं और ये डिसअपेयर हो जाते हैं। इसके नीचे आता है तराई, ठीक है, उसके बाद आता है बांगर, और फिर आता है खादर। तो खादर, अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये फ्लड प्लेन है, कोई यहाँ से रिवर फ्लो करे, तो जो फ्लड प्लेन का इमीडिएट जो इफेक्ट में जो हर साल बिल्कुल नए एलुवियल डिपोजिट से रिप्लेनिश किया जाता है, वो खादर का एरिया हो गया। उसके ऊपर जो ओल्डर एलुवियम पाया जाएगा बांगर एरिया में, बिकॉज यहाँ पे रिवर कभी कभी डिपॉजिट करेगी जब एक्सेसिव बाढ़ आएगा, तब एक्सेसिव फ्लडिंग होगा तब। और तराई का एरिया तो ये ऐसा एरिया है कि यहाँ पे हमेशा, तराई मीन्स तर, इन हिंदी तराई मीन्स तर मीन्स जो भीगा हुआ हो। ये खेती के लिए अनुकूल नहीं होता है, जो छोटे छोटे मतलब कंकर जिसको कहते हैं वो होते हैं, खेती के लिए बहुत उपयुक्त नहीं होता है। और यहाँ पे री इमरजेंस हो जाता है भब्बर में, मतलब ये डिसअपेयर हो जाता है स्ट्रीम्स, और यहाँ पे री इमर्ज हो जाता है, और फिर बांगर और खादर। तो ये इसका स्टेप्स है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। आगे तो ये थर्ड गलत है, फर्स्ट सेकंड ट्रू है, ऑप्शन इज द ट्रू। 21, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पेनिनसुलर प्लेटो इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल लैंडमार्क्स। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। द वेस्टर्न घाट आर लोअर एंड मोर डिसकंटिन्यूअस देन द ईस्टर्न घाट। एक्चुअली ये गलत स्टेटमेंट है, मैं आपको अभी बताऊंगा समझाकर। Meghalaya and Karbi Anglong Plateau are treated as extensions of peninsular block separated from it by the Malda Fault Depression region. ये भी करेक्ट है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है ना, कि पेनिनसुलर ऐसा इंडिया है, मैं आपको बता रहा हूँ। वेस्टर्न घाट, यहाँ पे देखिए ये वेस्टर्न घाट है, ये बिल्कुल गुजरात से लेके ऐसे कंटिन्यूअस एक माउंटेन रेंज है। महाराष्ट्र में हो गया, यहाँ पे आपको नीलगिरी हो गया, नीलगिरी का सबसे ऊंचा जो है नीलगिरी, बहुत ही फेमस है। और यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस शिवरॉय, जवेड़ी, नल्ला मल्ला, पलक्कड़, ये हो गया शिवरॉय, जावेड़ी, नल्ला मल्ला और पलक्कड़, ये हो गया इधर। और इधर हो गया आपका महाराष्ट्र में एक कलसुबाई है, पिक है। और यहाँ पे नीलगिरी में डोडा बेटा है, जो कि नीलगिरी का सबसे बड़ा ऊंचा पीक है। और यहाँ पे कार्डेमम पीक है, कार्डेमम, ये बार बार आता है, कार्डेमम द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ कार्डेमम पीक। यहाँ पे वेस्ट और ईस्ट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिल भी जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और देखिए तो ये कंटिन्यूअस है और ये डिसकंटिन्यूअस है, इरोडेड है बिल्कुल, अपने मतलब बहुत कम हाइट इसके बचे इरोड हो चुके हैं, लेकिन ये अभी भी बना हुआ है। तो जब बात यहाँ पे लिख दिया वेस्टर्न घाट और लोअर एंड मोर डिसकंटिन्यूअस, ये तो गलत हो गया, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। द पेनिनसुलर प्लेटो इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट, ये सही। अब देखिए यही जो पेनिनसुलर प्लेटो का, जब हमारा इंडिया जब उधर से यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो एक गंगा और ये ब्रह्मपुत्र का प्लेन बना, यहाँ पे सिंक लाइन बना, जियो सिंक लाइन इसको बोलते हैं, एक डीप बना, 4 डीप इसको बोलते हैं।
अब इस पे गंगा और ये इनकी ट्रिब्यूटरीज जो रिवर्स थी, ये नदियां अपने डिपॉजिट्स लेकर आई और इसको भर दी। बट यही पोर्शन ना इंडिया को जो इस तरफ का जो बचा ईस्टर्न स्टेट में, जो कार्बी आंगलैंड और मेघालय प्लेटो बोर है, ये एक्सटेंड हुआ था, यही वाला पोर्शन था। और चूंकि वो थोड़ा डीप नहीं बन पाया था और वो ऊपर ही रहा और उसे नदियां भर नहीं पाई, तो ये अब ये इसी का कंटिन्यूअस पार्ट है। ये याद भी रखने की चीज है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका आंसर 2 नहीं है, 1/3 होगा। अब नेक्स्ट 21, 22. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: द डिजर्ट द ग्रेट इंडियन डिजर्ट लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली एंड इज आल्सो नोन एज मरुस्थली। ये आप मैप देखिए, ये है ऐसा, देखिए यहाँ पे ये है राजस्थान, ये है अरावली, बिल्कुल ऐसे जाता है। इसके जो भी वेस्ट में है ना, इसी को मरुस्थली बोलते हैं। और जितना वेस्ट आप जाइएगा उतना ज्यादा हमारा जो प्रेसिपिटेशन है, जो बारिश होती है, वो कम होते जाती है। तो आपको जितना जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये जो एरिया जो सबसे सूखा इलाके हैं, जैसलमेर ये है, ये सबसे सूखा एरिया ये यही है। तो ये तो सही बात है कि नॉर्थ वेस्ट में आप अरावली के जैसे ही वेस्ट जाइएगा तो ये मरुस्थली बोलते हैं, सही बात है। द लूनी इज द इम्पोर्टेंट रिवर इन द डिजर्ट रीजन एंड मेनी डिजर्ट स्ट्रीम सोल्ड इनलैंड रीजन। इनलैंड ड्रेनेज कहने का मतलब ये है ना कि नदियां निकली तो, जैसे लूनी रिवर अरावली से निकलती तो है, बट ये कच्छ में जाके गुम हो जाती है, कभी समुद्र में नहीं मिलती है। मतलब सॉरी, यहाँ पे कच्छ यहाँ पे है ऐसे, ये कभी समुद्र में नहीं मिलती है। तो इसी को इंलैंड बोलते हैं, मतलब जो लैंड से निकला और लैंड में ही कहीं डिसअपेयर हो गया। तो ये भी करेक्ट है। द डिजर्ट कोस्टल प्लेन इज ए सबमर्ज्ड नैरो कोस्ट एंड देयरफॉर लैक मेजर डेल्टाज। सॉरी, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेट, ईस्टर्न कोस्टल प्लेट तो मेजर डेल्टा ही ईस्टर्न को लैक नहीं, यहाँ पे तो मेजर, चाहे कृष्णा गोदावरी का डेल्टा देखें या सुंदरवन का डेल्टा देखें, ये मेजर डेल्टा इधर है। तो ये समर्जेंट नहीं, इमर्जेंट है। और ये नैरो नहीं, बहुत ब्रॉड है। और ये लैक नहीं करता, जबकि यहाँ पे ज्यादा है, मेजर क्वांटिटी में ही डेल्टा यहाँ पाया जाता। तो ये थर्ड गलत है, तो फर्स्ट सेकंड होगा। 23. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई इन द बे ऑफ बंगाल एंड द अंडमान ग्रुप इज सेपरेटेड फ्रॉम निकोबार ग्रुप बाई 10 डिग्री चैनल। एक्चुअली ये याद रखिए कि अंडमान और निकोबार द्वीप जो है वो 10 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है। 10 डिग्री चैनल कहने का मतलब 10 डिग्री लैटिट्यूड, ऊपर का ऐसे 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 अंडमान है और नीचे निकोबार है। तो ये एक लैटिट्यूड, जो हम लोग लैटिट्यूड जानते हैं, वो 10 डिग्री लैटिट्यूड इसको डिवाइड कर रहा है। Lakshadweep Island are largely built of coral deposit and the island group is associated with 9 degree channel। ये भी सही है, लक्षद्वीप जो है वो 9 डिग्री चैनल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिए। और बैरन आइलैंड इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज लोकेटेड इन लक्षद्वीप। एक्चुअली ये सही है कि बैरन आइलैंड एक वोल्केनिक एक्टिव वोल्केनो है, बट ये लक्षद्वीप में नहीं है, क्योंकि लक्षद्वीप तो कोरल इन ओरिजिन है। तो कोरल इन ओरिजिन में कैसे वोल्केनिज्म हो सकता है? तो यहाँ पे जो भी होगा ना लक्षद्वीप के, ये हमारा जो वोल्केनिज्म होगा वो होगा अंडमान में। तो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। और मैं आपको कुछ और इंफॉर्मेशन बताता हूँ जो कि आता है 49 डिग्री पैरेलल जो है वो यूएस एंड कनाडा, CNADA होता है। 38 डिग्री पैरेलल जो है वो है नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। और 22 डिग्री पैरेलल जो है ये इजिप्ट एंड सूडान। ये है, ये बिल्कुल 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि ये तो बहुत बार पूछा भी गया कि यूएस और कनाडा के बीच में कौन है, यूएस एंड कनाडा। तो ये है, तो ये आप इसे रिमेम्बर कीजिएगा। एंड ये इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया? दे वे आर फाउंड बाई लावा फ्लो। ये अभी हमने डिस्कस किया कि नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया लावा से नहीं बनाया गया, बल्कि नदियों द्वारा लिया गया डिप्रेस जो डिपॉजिट है उससे बनाया गया। तो ये बी दिख रहा है, दे वे आर फाउंड ग्रेजुअल फिलिंग द फोर डिप ऑफ
जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन बाय सेडिमेंट्स, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। आप हमें जरूर कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। लेट मी नो इन द कमेंट। प्लीज सब्सक्राइब आवर क्विस्ट लिंक चैनल। थैंक यू।